Planning. Yes. What The about process of planning. we discussed the meaning of planning. We discussed the process of planning. We also Sir, features discussed of planning. yes, features of planning and Importance of planning. Importance. importance of planning. We had just begun, right? We had discussed 2 points. The first one is that it provides directions. It tells everyone, the master plan tells everyone what objectives we are expected to achieve and how exactly, right? Then second point we discussed was reduces risk of uncertainty. And here we discussed that planning can never eliminate risk. रिस्क कभी भी जीरो नहीं हो सकता, बट अगर हम वेल प्लान्ड वे में अपने पॉलिसीज बनाते हैं, डिसीजंस लेते हैं, अच्छी प्लानिंग करते हैं, तो रिस्क कम जरूर हो सकता है. बिकॉज व्हेन वी मेक साइंटिफिक प्रिडिक्शंस अबाउट फ्यूचर based on past and present trends, then the chances of those predictions turning out to be true are very high. यहां तक क्लियर है सबको? Yes, Yes, sir. sir. Okay. Yes, sir. Good. So next point is establishes standards for controlling. Suppose you are driving a vehicle. You reach a traffic signal. The signal is red and you stop over there. A traffic police person comes to you and says कि आप तो ज्यादा आगे आके रुके हो, आपको थोड़ा पीछे रुकना चाहिए था. तो आप रोड पे देखते हो कहीं पर वो स्टॉप लाइन है ही नहीं, तो आप ट्रैफिक पुलिसमैन को बोलते हो कि लेकिन स्टॉप लाइन तो नहीं है यहाँ पर. तो how do I know where I was supposed to stop? So in the absence of standard, controlling cannot be done, because what is controlling? Ensuring that the actual performance is as per the plans. और अगर प्लान्स ही नहीं है, स्टैंडर्ड ही नहीं है, तो फिर हम किससे कंपेयर करेंगे एक्चुअल परफॉर्मेंस को? जब वो स्टॉप लाइन ही नहीं है, कैसे पता चलेगा कौन आगे खड़ा है कौन पीछे खड़ा है? ठीक है, बट व्हेन दैट स्टॉप लाइन इज देयर, then with full authority the traffic policeman can say that yes, you have crossed the stop line, you should have stopped before earlier. Okay, so planning is important for controlling, because planning establishes those standards with which we match the actual performance and we ensure that the actual performance is as per the plans. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Next point is facilitates decision making. Planning facilitates decision making. How? Because when every employee, all the managers know what are the objectives, when they know clearly how and what they are supposed to do, so whenever whatever routine decisions they have to take, they are able to take those decisions very quickly, because they already have some policies, some rules, some procedures, some methods already developed by the top level management while planning. So all these policies, procedures, methods, rules help them take that decision quickly. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Next point is promotes innovative ideas. Now, planning is a mental exercise we discussed in its features. It is all about thinking, judgment, creating something new, creating new decisions. So it is totally an innovative process. While planning, we think what can be the new features in our product, what can be the new design of the product, what can be the new ways in which we can do the work so that the efficiency and effectiveness improves. Now, deciding all this, planning all this is creativity. So planning leads to innovation. Innovation means new ideas, new designs. Clear? Yes, sir. Next point is Yes, sir. reduces overlapping and wasteful activities.
suppose there is a party that 3 people are organizing collectively. Now what happens अगर ये तीनों पहले प्लानिंग नहीं करते बैठ के कि क्या क्या काम करना है, किसने कैसे करना है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है? Can you imagine? Can you guess? What all can go wrong? Sir, can you repeat the question? So there is some background noise. Okay, I am muting you, Anshika, for a minute. I'll unmute you again when I'll ask something. Yeah, I was saying, suppose 3 लोग मिलकर एक पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कुछ प्लानिंग नहीं की कि क्या क्या करना है, कैसे करना है, कौन क्या करेगा, बिना प्लानिंग के, और वो पार्टी ऑर्गेनाइज करने में लग गए. What all do you think can go wrong? Can you think of certain things which can go wrong? Sir, maybe it's a birthday party and they have got decoration for anniversary. That can be there. Secondly, हो सकता है कि डेकोरेशन मटेरियल तीनों में से कोई भी किसी ने भी अरेंज नहीं किया, ये सोच के कि बाकी दोनों कर रहे होंगे. So no decoration material at all. Another possibility is that रिफ्रेशमेंट्स डबल हो गई. 3 में से 2 लोग रिफ्रेशमेंट ले आए क्योंकि पहले डिसाइड ही नहीं किया था रिफ्रेशमेंट किसने लानी है. तो क्या होगा? वेस्ट हो गई, रिसोर्सेज वेस्टेज होगी. ठीक है, तो अगर हम प्रॉपर प्लानिंग करते हैं तो ये दोनों तरह की चीजें अवॉइड कर सकते हैं. एक तो कोई इंपॉर्टेंट एक्टिविटी मिस आउट नहीं होगी. सेकेंडली, there will be no overlapping or wasteful activities. Means it will not happen that same activity which was required to be done once has been done more than once. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Right. Because when we plan, we prepare a sequence of activities, we prepare timings of activities. And while doing that, whenever we find, जब हम लिख रहे होते हैं एक एक चीज, तो हमें पता चल जाता है अच्छा ये चीज तो रिपीट हो गई, ये तो पहले आ चुकी है, तो हम उसे एक जगह से कट कर देते हैं. तो कहीं ओवरलैपिंग, रेपिटेशन, वेस्टफुल एक्टिविटीज नहीं होंगी. ठीक है, एंड इट विल एंश्योर बेस्ट यूज ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज. मींस हाई व्हाट? Best use of available resources means high Efficiency and effectiveness. efficiency. Very good. And it also means minimum Wastage of resources. Wastage. wastage and minimum cost. Very good. Now we come to limitations. What can be the limitations of planning? Think and tell. Sir, wastage of time. ओके, हाँ, प्लानिंग करने में कुछ टाइम लगेगा, वो एक लिमिटेशन हो सकती है. यस, व्हाट एल्स? Maybe some employees would not follow the plans made by the organization, the top level management. Okay, yes, some employees may not like the plans made by the top level management. That can also be there. What else? Sir, if one sequence or one thing goes wrong, everything further goes wrong. Yes, that can also happen. One, So, yes, do you think, sir, like we had like it's not like we can't have things like gangplank. gangplank is not directly related to planning. No, sir. I mean, like there wouldn't be any. There will be too much strictness or rigidity due to planning. Right. It can be. Yes. So let us discuss these points now. These and few more. First is leads to rigidity. Rigidity means being very strict, not ready to be flexible, not ready to change even a little bit. See, whatever plans are made, whatever rules, procedures, methods, programs are made, why are they made in the first place? Can you tell me why do we make all these are types of plans, rules, procedures, methods, programs? Why do we make all these?
For smooth operations. For smooth operations. Why do we have traffic rules? Let's be very specific. Why do we need traffic rules? Sir, to avoid accidents. Very good. To avoid accidents, to avoid traffic jams, so that there is smooth movement of traffic always, right? If everyone sticks to their lane, they do not jump the red signal, then there will be no or minimum accidents, there will be no or minimum traffic jams. So, right. So purpose of all these plans is smooth operations. But प्लान्स को अगर बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करने लग जाए हम, जैसे कहते हैं ना कि लकीर के फकीर हो जाना, लकीर के फकीर मतलब जो रिटर्न है हम तो उसी को फॉलो करेंगे, जो रूल है उसी को फॉलो करेंगे, जरूरत पड़ने पे भी डेविएट नहीं करेंगे। सपोज एक एम्बुलेंस भी रुकने लग जाए हर सिग्नल पे, तो वो गलत हो जाएगा ना। वहां पे जरूरी है कि वो सिग्नल जंप कर ले, और उसको अलाउड है। इसीलिए क्यों फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है रूल, इस रूल में एम्बुलेंस के लिए, पुलिस के लिए, फायर सर्विसेज के लिए, बिकॉज दीज आर ऑन इमरजेंसी ड्यूटी एंड इवन अ सिंगल सेकेंड डिले इन दीज सर्विसेज कैन बी डिजास्ट्रस। सो देयर इज सम फ्लेक्सिबिलिटी। लेकिन अगर वो फ्लेक्सिबिलिटी ना रखें और हम कहें नहीं जी रिजिडली, कोई ट्रैफिक पुलिस पर्सन बिल्कुल रिजिड हो जाए किसी ट्रैफिक सिग्नल पे, नहीं मैं तो एम्बुलेंस को भी नहीं क्रॉस सिग्नल जंप करने दूंगा, पुलिस व्हीकल को भी नहीं करने दूंगा, तो फिर प्लानिंग का बेसिक पर्पस जो था हमारा वो कहीं कुछ हद तक डिफीट हो जाएगा। सो समटाइम्स व्हेन प्लानिंग इज इम्पोज्ड वेरी रिजिडली, ठीक है, पता है कि हमें रोड के लेफ्ट साइड पे ड्राइव करना है अपना व्हीकल, ठीक है, हमारे यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे ड्राइविंग होती है हमारी कंट्री में, लेकिन अगर लेफ्ट हैंड साइड वाली रोड पे कुछ रिपेयर वर्क चल रहा है, तो क्या हम गाड़ी रोक के अब वहीं पे बैठ जाएंगे जब तक ये 3-4 दिन तक, जब तक रोड ठीक नहीं हो जाएगी तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे? नो, उसमें खुद ट्रैफिक पुलिस वाले डाइवर्जन का बोर्ड लगा देते हैं कि दूसरी लेन से चले जाओ आप, ये वाला पैच दूसरी लेन से क्रॉस कर लो। सो दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी। बट व्हेन देयर इज लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी वी कॉल इट रिजिडिटी। सो रिजिडिटी इज ऑपोजिट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। अगर प्लान्स को कोई बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करे कि नहीं ऐसा ही फॉलो करना पड़ेगा जैसा लिखा हुआ है, तो कई बार जब सिचुएशन डिमांड करती है डेविएशन थोड़ी सी, फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी सी, तब भी अगर वो फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ ना करें, देन इट बिकम्स अ लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, देन इट मे हैव सम नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। यस सर, बट आपने जो एम्बुलेंस का एग्जांपल दिया है उसमें मिसयूज भी तो हो सकता है, बिकॉज एम्बुलेंस को इतनी फ्लेक्सिबिलिटी दी है कि इट कैन जंप द रेड लाइट्स, तो वो उसका मिसयूज भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, और कई बार हो सकता है तो सर उस केस में थोड़ी रिजिडिटी होनी चाहिए। मे बी वो ट्रैफिक पुलिस उससे पूछ सकता है दैट डू यू एक्चुअली हैव एन इम्पोर्टेंट वर्क और इज देयर अ पेशेंट वेटिंग फॉर यू। Yes. बट अगर कोई ऐसा है ही नहीं एंड दे आर जस्ट जंपिंग द लाइंस एंड दैट्स रॉन्ग। यस, लेकिन अगर उससे पूछने के लिए उसे रोकेंगे तो वो रोकने में और पूछने में भी तो थोड़ा टाइम वेस्ट होगा ना। व्हाट कैन बी डन इज, अगर सपोज एक ट्रैफिक पुलिसमैन एक क्रॉसिंग पे खड़े हैं और उन्होंने देखा एक एम्बुलेंस सायरन बजाती हुई और सिग्नल को जंप करके गई है, लेकिन जब वो पास हुई उन्हें डाउट हुआ कि एम्बुलेंस तो खाली थी, ठीक है। नाउ व्हाट दिस पुलिसमैन कैन डू इज ही कैन फॉलो दैट एम्बुलेंस, और जहां पे वो जाके रुकेगी डेस्टिनेशन पे, किसी हॉस्पिटल में या किसी भी जगह पे, जब वो फाइनली जहां पे रुकेगी वहां पर जाकर उसको चेक कर सकते हैं कि भाई क्या खाली, इसलिए भी तो हो सकती है ना वो पेशेंट को पिक करने जा रही है, तो जब वो फाइनली जहां पे रुकेगी तो तब वहां पर उसे चेक किया जा सकता है कि भाई किस वजह से वो जंप करके आया था, सिग्नल वाकई में जरूरत थी या नहीं। अगर थी, नथिंग इज टू बी डन। अगर नहीं थी, देन दैट व्हीकल और दैट ड्राइवर कैन बी चालान। लेकिन उस टाइम उसे निकलने देना बहुत जरूरी है, वहीं पे रास्ते में उसे स्टॉप नहीं करना चाहिए। जब वो फाइनली कहीं ना कहीं जाके रुकेगा, अगर पेशेंट को ले जा रहा है तो हॉस्पिटल पे जाके रुकेगा, अगर पेशेंट को लेने जा रहा है तो उसके घर पे या रोड पे कोई एक्सीडेंट हुआ है तो वहां पर रुकेगा। एट दैट प्लेस दिस थिंग कैन बी चेक्ड।
ओके सर। राइट। सो बहुत ज्यादा रिजिड नहीं होना चाहिए हमें। हाँ, जनरली हमें प्लान्स स्ट्रिक्टली फॉलो करने चाहिए, बट जहां पर जेन्युइन नीड लगे कि जरूरत है डेविएशन की, एक्सेप्शन की, वहां पर एक्सेप्शन अलाउ करनी चाहिए। इसका एक एग्जांपल भी हमने पहले लिया था, इफ यू रिमेंबर, 2 एम्प्लॉइज आर लेट, वन इज अ हैबिचुअल लेट कमर, तो उसके लिए तो रूल स्ट्रिक्टली अप्लाई होंगे, एंड सेकंड एम्प्लॉय हु इज जनरली वेरी पंक्चुअल, लेकिन वो एक पर्टिकुलर डे पे ट्रैफिक जैम में फंस गया इसलिए लेट है, जेन्युइन रीजन है, तो उसके लिए हमारे रूल्स हम फ्लेक्सिबल कर सकते हैं कि ठीक है, उसके अगेंस्ट हमें कोई एक्शन नहीं लेना है, इट इज नो फॉल्ट ऑफ हिज, राइट। यस सर। नेक्स्ट लिमिटेशन इज रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। अभी तो हमने कहा था इंपॉर्टेंस में, क्या कहा था, प्रोमोट्स इनोवेटिव आइडियाज, वहां पे तो हम कह रहे थे क्रिएटिविटी बढ़ाती है प्लानिंग। अब यहां पर हम कह रहे हैं रिड्यूसेस क्रिएटिविटी, तो यू मस्ट बी थिंकिंग सर तो अपनी बात को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, इजंट इट? मैं अपनी बात को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हूं। इंपॉर्टेंस में मैंने कहा क्रिएटिविटी बढ़ती है, इनोवेशन होती है, अब मैं कह रहा हूं क्रिएटिविटी रिड्यूस होती है प्लानिंग से, इज इट सो? What do you feel? Sir, I think they are two different aspects where creativity is stopped and supported. How? Sir, like in planning, sir, like you are given a certain job, so you can't be creative because you have to complete that certain job in that certain resources. That's why it doesn't support planning. But sir, in the latter, it supports creativity because sir, it allows an employee to think how he can get ways in which he can create that method of planning. Okay, okay. Let me. Sir, maybe. हाँ, yes अंशिका बोलो। Sir, maybe in जो हमें काम दिया गया है, and if I want to do something creative or innovate, and my planner doesn't allow it, as it can affect the further planning. So I cannot do anything creative with my own mind. I have to do what the planner has given me to do. Yes, absolutely right. See, there are two sets of people. One is top level management जिन्होंने master plans बनाए, फिर मिडल लेवल मैनेजर जिन्होंने अपने अपने डिपार्टमेंट के थोड़े डिटेल्ड प्लान्स बनाए, ठीक है। तो जो प्लानिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं उनकी क्रिएटिविटी तो एनकरेज हो रही है, बढ़ रही है, बिकॉज प्लानिंग इज टोटली अ क्रिएटिव प्रोसेस। बट जो ऑपरेटिव वर्कर्स हैं जिन्होंने उन प्लान्स को इंप्लीमेंट करना है, उन्हें प्लान बना के दिए गए हैं और उन्हें एग्जीक्यूट करना है, उन एम्प्लॉयज की अगर हम बात करें तो उनके लिए ये क्रिएटिविटी, उनकी क्रिएटिविटी रिड्यूस हो सकती है। ये फर्स्ट पॉइंट से लिंक होगा। अगर प्लान्स को रिजिडली इंप्लीमेंट किया जाए तो ऑपरेटिव वर्कर्स की, लोअर लेवल्स पे जो वर्कर्स हैं या सुपरवाइजरी लेवल मैनेजर्स हैं, उनकी क्रिएटिविटी को ये रिड्यूस कर सकता है, ठीक है। और ये हमारा अगर रिजिडली हम फॉलो करेंगे प्लानिंग और क्रिएटिविटी को रिड्यूस कर देगा तो हमारा कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हो जाएगा? इनिशिएटिव। वेरी गुड, इनिशिएटिव, ठीक है। ये आपको अपने दिमाग के जो वो हैं पर्दे खोल के रखने पड़ेंगे, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में, एप्लीकेशन बेस्ड, किसी चीज को दूसरी से लिंक करके, दूसरे को तीसरे से। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर हैं, इमीडिएटली आपके माइंड को स्ट्राइक करेगा किस बारे में बात हो रही है। अगर हम एम्प्लॉइज को कह रहे हैं नहीं, जो आपको प्लान दिया गया है बिल्कुल वैसे ही करो, कोई एम्प्लॉय कहता है नहीं सर या मैम, आई हैव अ बेटर आइडिया इन माय माइंड, हम इसको काम को ऐसे करें तो बेटर हो सकता है, और मैनेजर उसे कहता है नो, जस्ट डू एज यू हैव बीन टोल्ड, तो क्या हो गया? क्रिएटिविटी किल हो गई उस एम्प्लॉय की, इनिशिएटिव प्रिंसिपल वायलेट हो गया। तो अगेन इस लिमिटेशन को ओवरकम करने का क्या तरीका है? प्लान्स को इंप्लीमेंट करो, लेकिन इतना रिजिडली नहीं कि बिल्कुल भी डेविएशन अलाउ नहीं करो। अगर कोई एम्प्लॉय, कोई वर्कर आपके पास सजेशन लेकर आता है, आप उसकी सजेशन सुनो।
अच्छी लगती है और आपकी अथॉरिटी के अंडर है तो आप अलाउ करो उसे। अगर अच्छी लगती है और आपकी अथॉरिटी के अंडर नहीं है वो डिसीजन लेना, तो हायर लेवल को कम्युनिकेट करो, उनका अप्रूवल मांगो कि हम ये सजेशन हमें मिली है एंड आई फील दिस इज अ गुड सजेशन, वी वांट टू इम्प्लीमेंट इट, कैन वी? ठीक है, सो दिस वे दिस लिमिटेशन कैन बी ओवरकम। क्लियर? ओके सर। नेक्स्ट इज टाइम कंज्यूमिंग। ठीक है, ये आपने कहा था पहले कि टाइम, माधव ने कहा था टाइम लगता है। यस, प्लानिंग में बहुत सारा डेटा कलेक्ट करना होता है, उसे एनालाइज करना होता है, फिर डिसीजंस लेने होते हैं, प्रिडिक्शंस करनी होती हैं, डिटेल्ड प्लान्स हैव टू बी वर्कड आउट, ऑल दिस रिक्वायर्स सम टाइम। लेकिन तो क्या हम प्लानिंग नहीं करें? सर मे बी बिना प्लानिंग के ज्यादा टाइम लगे जितना शायद Very good. प्लानिंग करने में लगता। एक्सीलेंट। अगर नहीं करेंगे तो और ज्यादा टाइम वेस्ट हो सकता है। तो हमें दोनों चीजों में बैलेंस बनाना है कि प्लानिंग करनी तो है, लेकिन प्लानिंग में अननेसेसरली इतना ज्यादा टाइम नहीं लगाना कि हम प्लान ही करते चले रह जाएं और एग्जीक्यूशन का टाइम निकल जाए। ठीक है, तो इतना ज्यादा टाइम नहीं लगा देना चाहिए प्लानिंग में, रीजनेबल टाइम हमें लगाना चाहिए। ठीक है, वी शुड नॉट वेस्ट सो मच। कई लोग होते हैं सोचते बहुत ज्यादा रह जाते हैं कि क्या करेंगे कैसे करेंगे, पता चलता है सोचते ही रह गए, पूरा साल सोचते रह गए कैसे पढ़ना है कैसे पढ़ना है, कल से शुरू करेंगे परसों से शुरू करेंगे, और पता चला एग्जाम्स आ गए, बोर्ड एग्जाम्स आ गए, नौ टाइम निकल गया उसे एग्जीक्यूट करने का प्लान को। तो प्लान करना है, आप पहले सेशन के पहले दिन ही आप थोड़ा सा 1-2 घंटे 3-4 घंटे लगा लो ना उसमें प्लानिंग में, और उतना सफिशिएंट है, और अपना टाइम टेबल बना लो, उसे फॉलो करना शुरू कर दो। पूरा साल अगर सोचते रह जाओगे कि बाद में करेंगे बाद में करेंगे, तो फिर एग्जीक्यूशन का टाइम निकल जाएगा और फिर उस प्लानिंग का कोई यूज नहीं रह जाएगा। Right? So much time should not be devoted to planning that no or very less time is left for its implementation. Clear? Yes, यस sir. सर। Similarly, अच्छा, जो limitations हम डिस्कस कर रहे हैं इन्हें हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, इंटरनल लिमिटेशंस और एक्सटर्नल लिमिटेशंस। इंटरनल लिमिटेशंस वो जो ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में है, एक्सटर्नल वो जो एनवायरमेंटल है, जो ऑर्गेनाइजेशन के या मैनेजमेंट के कंट्रोल में नहीं है चीजें। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं इंटरनल वाली। ठीक है, सो नेक्स्ट इज कॉस्टली। ऑब्वियसली जब हम डेटा एनालाइज करेंगे कलेक्ट करेंगे तो इस सब खर्चा भी होगा। अगर हम कुछ एक्सपर्ट्स की ओपिनियन भी लेंगे, एक्सपर्ट्स को अपॉइंट करेंगे प्लानिंग के लिए, तो वो अपनी अच्छी फीस भी लेंगे। सो प्लानिंग इज अ कॉस्टली प्रोसेस। Again we come back to the same question. So should we not plan? Sir, not planning might create a mess and it might be more costly. Yes, it may prove to be more costly to not to plan. ये एक बड़ी अच्छी स्टेटमेंट दे दी अंशिका ने, ये एक क्वेश्चन बन गया एप्लीकेशन बेस्ड। ठीक है, I'll think about putting this question in one of the exams sometime, कि not planning may prove to be more costly than planning। ठीक है, क्योंकि अगर हम अच्छी प्लानिंग नहीं करेंगे हो सकता है इतनी वेस्टेज हो जाए, इतना नुकसान हो जाए कि वो बहुत कॉस्टली पड़े हमें। तो प्लानिंग जरूरी है। लेकिन अगेन जैसे हमने टाइम के केस में कहा, कॉस्ट के केस में भी सेम बात कहेंगे कि इतनी एक रीजनेबल कॉस्ट आप इंकर करो प्लानिंग पे, इतनी ज्यादा कॉस्ट मत लगा दो प्लानिंग पे कि आपका प्लानिंग का पर्पज ही, उसका बेनिफिट्स जो मिलने हैं प्लानिंग के उससे ज्यादा कॉस्ट इंकर हो जाए। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक ज्वेलरी शोरूम है अगर आपका, जिसमें लाखों के करोड़ों रुपए के गुड्स हैं, आपके ज्वेलरी है, डायमंड गोल्ड, वहां पे अगर आप कई हजार रुपए लगा के प्लान करते हो उसका सिक्योरिटी सिस्टम, सीसीटीवी कैमरास, थेफ्ट अलार्म एंड अदर मेजर्स, तो वो जस्टिफाई करता है उससे मिलने वाले बेनिफिट को, क्योंकि वो लाखों करोड़ों की चोरी बचा सकता है। लेकिन जस्ट इमेजिन एक छोटा सा पान शॉप वाला जो है, वो अगर इस तरह का सिस्टम लगाएगा अपनी शॉप में, देन व्हाट विल हैपन? इतने का तो सामान नहीं होगा उसकी शॉप में जितनी कॉस्ट इंकर हो जाएगी इन चीजों में। सो
that much reasonable cost should be incurred in planning, which justifies the benefits to be derived from this planning. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Now we come to external limitations, which are not in what? Which are not in our hands. Yes, or matlab in the hands of management, in the hands of Management. organization, which are beyond the control of the organization or the management. So under this, next point is planning may not work in a dynamic environment. Business environment का एक बड़ा important feature है that it is dynamic, it keeps on changing. ठीक है? Planning is based on some planning premises. Remember? Yes, sir. Yes, What sir. are the premises? Premises are the assumptions about the environment. कि demand इतनी होगी, इतनी हम production capacity बढ़ा सकते हैं, ये सब हम assume किया अगर 20% sale बढ़ानी है तो. ठीक है? अगर डिमांड ही फॉल हो जाए मार्केट में तो फिर हमारा 20% सेल बढ़ाने वाला जो प्लान है वो भी फेल हो जाएगा. जब डिमांड ही नहीं है कैसे बेच लोगे ज्यादा? यू कैन नॉट. या सपोज मशीन ही अवेलेबल नहीं है मार्केट में आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए. डिमांड इज देयर, योर विलिंगनेस इज देयर, यू हैव द रिक्वायर्ड फंड्स, बट द मशीनरी इज नॉट अवेलेबल. नाउ व्हाट टू डू? द प्लान विल फेल. ठीक है? तो अगर एनवायरनमेंट में कुछ ऐसे चेंजेस हो गए, हम प्रिडिक्ट करते हैं एनवायरनमेंट को, अनसर्टेनिटी को रिड्यूस कर देती है प्लानिंग, लेकिन एलिमिनेट नहीं कर सकती. रिमेंबर, 100% एक्यूरेटली हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते. तो इफ द एक्चुअल सिचुएशंस टर्न आउट टू बी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी हैड प्रिडिक्टेड एंड सो डिफरेंट दैट आवर बेसिक प्लानिंग प्रेमिसेस आर not holding true, then our plan may not work. इसीलिए लास्ट स्टेप क्या होता है प्लानिंग में? फॉलो अप, कि मॉनिटर करते रहो एनवायरनमेंट को. अगर एनवायरनमेंट में कुछ चेंजेस हो रहे हैं तो देखो कि क्या हमें प्लान को रिवाइज करने की जरूरत है. ठीक है? लेकिन अगर चेंजेस ऐसे हो गए कि हमारी बेसिक जो प्रेमिसेस थी, assumptions थी प्लानिंग की, वही फॉल्स हो गई, then our plan will not be able to work. It will not be successful. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Right. Next point is does not guarantee success. Suppose एक बार आपने कोई सिचुएशन आई, उसमें आपने एक प्लान बनाया और वो प्लान बड़ा अच्छा वर्क किया. ठीक है? लास्ट ईयर हमने जो अपना एकेडमिक प्लान बनाया स्कूल में कि कैसे हम सिलेबस कवर करेंगे, क्या क्या एक्टिविटीज कराएंगे स्कूल में, बड़ा सक्सेसफुली वर्क हुआ वो. ठीक है? टाइमली सिलेबस भी कंप्लीट हुआ, मेजॉरिटी बच्चों को कॉन्सेप्ट समझ में भी आए जो अटेंटिवली सुनते थे. वही प्लान अब हमने इस साल भी सोचा कि फॉलो करेंगे, पर क्या कर पा रहे हैं? No, sir. No, नहीं sir. कर पा रहे. क्यों? क्योंकि सिचुएशन ही बिल्कुल डिफरेंट हो गई है. लॉकडाउन है, कोविड-19 की वजह से स्कूल में हम फिजिकली हैं ही नहीं. तो हमने क्या किया? अपने प्लान को रिवाइज किया, चेंज किया. अब हम क्या कर रहे हैं? बेसिकली कोशिश हमारी यही चल रही है कि जितना जितना सिलेबस जिस मंथ में हम कवर करते थे एक्चुअल फिजिकली स्कूल में क्लासेस में, उतना ही हम ऑनलाइन टीचिंग के थ्रू कवर करते जाएं. लेकिन एक्टिविटीज वो नहीं हो सकती ऑब्वियसली जो स्कूल में होती थी. वे ऑफ एग्जीक्यूशन वो नहीं हो सकता. सो द सेम प्लान which worked very well at a particular time in a particular situation may not always work. आज की डेट में हम कहें कि नहीं जी हम तो वही प्लान चलाएंगे, कैसे चलाओगे? चला लो. मैं चला जाऊंगा स्कूल, खाली क्लासरूम्स में पढ़ा के आ जाऊंगा, बच्चे तो आएंगे नहीं, और मुझे भी स्कूल तक पहुंचने दिया जाएगा रास्ते में या नहीं पता नहीं, रास्ते में से ही पुलिस वाले वापस कर देंगे. सो if a plan has worked once, it does not mean it will always work. So every time we have to see the latest situation and then we have to revise or change the plan accordingly. Do you remember have you seen the movie Titanic? Yes, Yes, sir. sir. देखी है सबने?
कैसी लगी मूवी? Sir, I ट्रेजिक, think वेरी ट्रेजिक. yes, sir. हाँ, Yes, sir. लेकिन क्या आपने सोचा व्हाट लेड टू द सिंकिंग ऑफ टाइटैनिक? क्या रीजन क्या था उसके डूबने Sir, का? a fault by a person. Sir, लाउडर. according to the movie or according to the real events? अच्छा, दोनों अलग अलग हैं क्या? Sir, पता नहीं ना actually fictional है कि बंदा distract हो गया था. नहीं नहीं, जो आप जानते हो वो बताओ. Sir, actual reason तो ये किसी को नहीं पता that why the ship didn't stop, but according to the movie it was because of the person who had to see the course of the ship. What happened to that person? सर मूवी में तो ये था कि जो कैप्टन था उसको किसी ने ये बोला दैट यू आर वेरी स्लो एंड तुम्हारी शिप बहुत स्लो जा रही है, तो उसने अपनी स्पीड इंक्रीज की एंड जब सामने पत्थर और आए तो ही couldn't stop. Okay, let's understand what मतलब happened. Titanic was, अच्छा आपको एक इंटरेस्टिंग बात पता है? टाइटैनिक के डूबने से 12 साल पहले एक नॉवल किसी ने लिखी थी और उसमें यही स्टोरी थी कि एक बहुत बड़ा शिप आइसबर्ग से टकरा के डूब जाता है और उस नॉवल में उस शिप का नाम था टाइटन. स्ट्रेंज कोइंसिडेंस. इसी तरह से अभी ये जो कोविड-19 की सिचुएशन चल रही है, देयर वाज अ बुक इन 1971 और 81, ठीक है, जिसमें आईज ऑफ डार्कनेस आई थिंक नाम है उसका बुक का या नॉवल का, और उसमें स्टोरी यही थी कि एक वर्ल्ड ओवर एक वायरस स्प्रेड हो जाता है और उस वायरस का नाम क्या था उस बुक में? वुहान 400. और ये कहां पे ओरिजिनेट हुआ? एक्चुअल वायरस वुहान में, इन चाइना. तो कई चीजें ऐसी होती हैं जो हमारी समझ में नहीं आती. स्ट्रेंज, वेरी स्ट्रेंज बट ट्रू. और उस नॉवल पर फिर एक मूवी भी बनी थी, कंटेजियन. देखी हो शायद आपने. देखी है किसी ने? नो सर. अच्छा, No, ये sir. है नेट पे अवेलेबल है आई थिंक. कई उन पे वीडियो साइट्स पे भी अवेलेबल है. कंटेजियन जो बहुत पहले आई थी और आज की डेट में वही सिचुएशन बिल्कुल हम देख रहे हैं हो रहा है. तो पता नहीं, कई बार कुछ चीजें समझ में नहीं आती. एनीवेज, गोइंग बैक टू आवर डिस्कशन ऑफ टाइटैनिक. टाइटैनिक वाज प्लान्ड एज एन अनसिंकेबल शिप. बहुत हैवी स्टील का बना हुआ था, उसकी बॉडी बनी हुई थी. बहुत सारे सेफ्टी मेजर्स थे उसमें और उसको मार्केट भी ऐसे किया गया था, द शिप दैट कैन नेवर सिंक. और जब इंसान को इतना घमंड हो जाता है ना अपने ऊपर, अपनी अचीवमेंट्स पर, तब नेचर अपनी थोड़ी सी पावर दिखा देती है और उस पावर के आगे फिर हमें रियलाइज होता है हाउ फ्रेजाइल, हाउ वीक, हाउ स्मॉल वी ह्यूमन बीइंग्स आर. प्रेजेंट सिचुएशन भी वही है ऑलमोस्ट. आप सोचो, एक इतने टाइनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने, जिसको हम देख भी नहीं सकते, पूरी दुनिया को रोक के रखा हुआ है आज की डेट में. पूरी दुनिया को. That is the power of nature. Maybe that is the revenge of nature for all the exploitation that human beings have been doing. Anyways, back to Titanic. Let's continue. तो क्या हुआ? अनसिंकेबल शिप था. जो क्रू मेंबर्स थे उसके, वो बड़े केयरलेस हो गए. केयरलेस क्यों हो गए? कि जी ये शिप तो अनसिंकेबल है, ये तो कभी डूब ही नहीं सकता, इसमें इतने सेफ्टी मेजर्स हैं. तो जो कांस्टेंट और क्लोज वॉच उन्हें रखनी चाहिए थी कि कॉन्स्टेंटली बाइनोक्यूलर्स से देखना होता है दूर दूर तक कि कहीं कुछ बीच में ऑब्स्टेकल तो नहीं आ रहा है, तो उसमें वो ढीले पड़ गए और स्पीड उन्होंने बहुत जितनी होनी चाहिए थी उससे ज्यादा बढ़ा दी, इस गलत फहमी में कि ये तो अनसिंकेबल शिप है. इट हैज बीन प्लान्ड दैट वे दैट इट कैन नॉट बी सिंक, इट कैन नॉट सिंक. और वही केयरलेसनेस उसको ले डूबी, क्योंकि अचानक जब उन्होंने रियलाइज किया कि आइसबर्ग के सामने, तो वो बहुत देर हो चुकी थी और उतने में वो उसे टर्न नहीं कर पाए शिप को. एंड जस्ट इमेजिन, इतनी थिक लेयर्स ऑफ स्टील को किसने काट दिया? आइस ने, फ्रोजन वाटर. मतलब इमेजिन करना मुश्किल होता है कि पानी ने इतने हैवी जो थिक लेयर्स ऑफ स्टील थी उन्हें काट दिया और पानी अंदर भर गया, द शिप सैंक. सो दिस इज अनदर लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग. ये भी इसी में आ जाता है, डज नॉट गारंटी सक्सेस में, दैट व्हेन people become careless, thinking that we have a foolproof plan,
ऐसा प्लान जिसको कोई फूल नहीं कर सकता, कोई बेवकूफ नहीं बना सकता, कुछ फूल प्रूफ नहीं होता। नथिंग इज 100% फूल प्रूफ, रिमेंबर। तो अगर एम्प्लॉइज केयरलेस हो जाते हैं ये सोच के कि प्लानिंग बड़ी अच्छी हुई है, अब नाउ नथिंग कैन गो रॉन्ग, तो कई बार उनकी केयरलेसनेस की वजह से कुछ ऐसा हो जाता है कि प्लान फेल हो जाता है। अगर वो केयरफुल रहते और वॉच रख रहे होते लगातार, तो बहुत दूर से वो देख लेते उस आइसबर्ग को और शायद वो ट्रेजेडी नहीं होती। क्लियर? Yes, sir. सर यस। सर जो कोरोना वायरस वाला जो है कोविड-19, वो तो हमारा इन्वायरमेंट डायनेमिक है, उसमें आना चाहिए ना? किस में आना चाहिए? मतलब our environment is dynamic, it keeps on changing. एक्चुअली ये डायरेक्टली प्लानिंग से रिलेटेड तो नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर हम इसे कहेंगे तो दोनों में डालेंगे, डायनामिक में, क्योंकि अचानक कुछ चेंज हो गया एनवायरनमेंट में जो हमने सोचा ही नहीं था कभी किसी ने, ठीक है, लेकिन साथ के साथ ये हमारी केयरलेसनेस से भी रिलेटेड है, जो ह्यूमन बीइंग्स नेचर को इतना हार्म पहुंचाते हैं इतने सालों से, और कहीं ना कहीं उससे भी लिंक लगता है मुझे ये। तो यस, मेनली इसमें आता है डायनामिक में कि एनवायरनमेंट में एकदम सडनली इतना चेंज आ गया बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम सोचें तो, बट टू सम एक्सटेंट कहीं केयरलेसनेस भी इसमें हो सकती है। ओके सर। ठीक है, अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, हाँ, क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कह रहे हो यस इट विल कम इन दिस, मे नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट, किसी ने सोचा नहीं था, अचानक ऐसी सिचुएशन आ गई और बिजनेसेस बंद करने पड़ गए, यस इट विल कम अंडर may not work in dynamic environment. Okay, sir. Any doubt, anyone? No, sir. Okay, thank you. No, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.